السلام علیکم جی، نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ شدت عاشقی سویا شاہ قسط نمبر 2 جی، کہانی چلو پڑھتے ہیں۔ ماما کیوں پریشان کر رہی ہیں آپ؟ سیرت نے لاڈ سے مہرونسا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ مہرونسا بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے سر دھا بھری۔ سیرت میں چاہت کو لے کر پریشان ہوں، ساویان اس کا انتخاب کیسے کر سکتا ہے اور اسے ذرا بھی سلیقہ نہیں۔ مہرونسا بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سیرت نے سر ہلایا۔ ماما اس نے ہی بھائی کو پروپوز کیا تھا۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ آپ بھی بھائی کو جانتے ہیں، ریلیشن شپس وغیرہ اور لڑکیوں میں کہاں کوئی دلچسپی ہے، مگر چاہت کا پروپوز انہوں نے کیسے قبول کر لیا نہ جانے۔ سیرت نے انگلیوں سے کھیلتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں میری بہو سلیقہ مند ہو، اسے اچھے برے کی تمیز ہو۔ امید ہے زی چاہت کو سمجھا لے گا۔ مجھے تو اس کی ڈریسنگ سے ہی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اتنے تنگ کپڑے کون پہنتا ہے؟ تم بھی تو پیرس میں رہی ہو، تم تو ویسے کپڑے نہیں پہنتی۔ مہرونسا بیگم نے معصومیت سے کہا، جس پر سیرت کھل کر مسکرائی۔ ارے آپ ٹینشن مت لو نا ماما، میری زی بھائی چاہت کو سمجھا لیں گے، وہ ایسی ڈریسنگ نہیں کریں گے، آپ ٹینشن نہ لو، سیرت نے مسکرا کر کہا۔ مہرونسا بیگم نے سر ہلایا تھا، کچھ سوچتے ہوئے۔ سوری مسٹر اشفاق احمد، ہمیں یہ ڈیل منظور نہیں، کلائنٹس اٹھے تھے۔ ارے آپ ایک بار انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچ تو نہیں، آپ جیسے ایکسپرٹس چاہیں گے ویسے ہی ہوں گے، اشفاق صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کلائنٹس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سوری مسٹر اشفاق احمد، لیکن ہمارے خیال سے اگر مسٹر زی یہاں ہوتے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سب ڈسکرائب کرتے۔ کلائنٹس کانفرنس روم سے جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب نے چیئرز پر بیٹھتے ہوئے سر کو گویا گرایا تھا۔ سر پانی؟ سیکرٹری نے ان کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ ایک ہی سیکنڈ میں پوری پانی کا گلاس پی چکے تھے۔ سر آئی تھنک آپ کو سر ساویان کو منا لینا چاہیے، یہ تیسری میٹنگ ہے جو ناکامیاب ہو چکی ہے، اس طرح تو بہت نقصان ہو جائے گا، سیکرٹری نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اشفاق صاحب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا، اس طرح سے تو ایک ہی مہینے میں سب برباد ہو جاتا۔ پیپرز چیک کرتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر وقت دیکھا، چھٹی کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ کل کا واقعہ یاد کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنی کرسی سے اٹھا تھا، نہ جانے کی اسے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ پیپرز کو لاکر میں رکھتے ہوئے اس نے لاکر کی چابی پینٹ کی پاکٹ میں رکھی تھی، وہ پیچھے مڑا تھا۔ چاہت آپ یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ مسکراتے شرٹ کا کالر پکڑ چکی تھی۔ چاہت ایسی حرکتوں سے باز رہا کرے، مجھے یہ پسند نہیں، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اس کے انکار پر اس کے چہرے پر سرد تاثرات امڑ آئے تھے۔ پیار بھی کرتے ہو یا نہیں؟ بولو، ہمیشہ جھٹک دیتے ہو۔ میں گھر سے ریڈی ہو کر یہاں تمہارے لیے آئی اور تم ہمیشہ کی طرح آج پھر کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ چاہت پلیز اس وقت نہیں، آئی ایم آلریڈی ٹائرڈ، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے سر جھٹک گیا اور ایک جانب سے نکلنے لگا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ تم پیار نہیں کرتے مجھ سے؟ وہ بغیر اسے دیکھے بے جان آواز میں بولی۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہوا تھا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی ہوئی اس کے سامنے رکی۔ ایسے لگتا ہے ہر وقت میں تمہارے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں، نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ تو صاف صاف کہہ دو، مس کیوں کر رہے ہو میری فیلنگز کے ساتھ؟ سی میں تو صرف تم سے محبت کرتی ہوں نا، میرا کیا قصور ہے؟ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولتے ہو پیار نہیں کرتے، اگر نہیں تو میں اسی وقت جا کر برج سے نیچے کود کر اپنی جان دے دیتی ہوں۔ تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ تم میرا پیار ہو، میرا جنون ہو۔ اور اس کی خوبصورتی پر تراشی ہوئی ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ رکھتے وہ زومینی لہجے میں بولی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے حسین لبوں کا احاطہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہی ڈمپل ظاہر ہوا اور وہ تو دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کندھے سے تھام گیا۔ فائن، جاؤ اور مر جاؤ، اسے پیچھے ہٹاتا ہوا سرگوشیانہ انداز میں کہتا وہاں سے گزر گیا تھا۔ چاہت تو اسے دیوانگی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ سی، تم ساویان نہیں ظالم ہو، وہ اس کے پیچھے تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی آئسل پر پڑی تھی۔ وہ اسی لڑکی توصیف کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ چلو نا کہیں چلتے ہیں سی، چاہت نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر آئسل پیچھے مڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لیے ساویان کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آئسل نے عام سی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ساویان کو دیکھا تھا۔ اگر ہمارا پیپر دیکھا ہوتا تو یقیناً غصہ کرتے اور موڈ بھی خراب ہوتا اور ہماری خیر بھی نہ ہوتی۔ مطلب پیپر چیک نہیں ہوئے، کل ہی پیپر نکالیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر اسے دیکھتی وہ سوچ رہی تھی، ان کی گاڑی ہمیشہ کی طرح ان سے آگے نکل گئی تھی۔ چلو ریسٹورنٹ چل کر کچھ کھاتے ہیں، توصیف نے خوشگواریت سے کہا تھا۔
आइज़ल का दिल तेज़ी से धड़का। नहीं, फिर कभी। अभी नानू घर पर अकेली हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। वह हलक तर करती गड़बड़ाकर बोली थी। तौसीफ के माथे पर शिकनों का जाल उभरा था। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। वो कुछ देर बाद सख्त लहजे में बोला था। वो खामोश हुई थी। कहने को कुछ नहीं था, जाना वो इसके साथ चाहती जो नहीं थी। तौसीफ ने दांत पीसे थे। उसे घर ड्रॉप करके वो कब का रुख मुड़ गया जो इसका रोज़ का मशगला था। नमाज अदा करके वो अनफाल बीबी के पास आ गई थी, जहाँ उसे सुकून मिलता था। सबसे ज़्यादा। आ गई मेरी बच्ची। अनफाल बीबी ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया था। वो इनकी गोद में सर रखते आंखें मूंद गई थी। नानो, हम आपसे एक बात पूछें? वो बंद आंखों से बड़बड़ाई। अनफाल बीबी ने सर हिलाया था। जब आप हद से ज़्यादा किसी के बारे में सोचें तो? वो आंखें खोलती धीमे लहजे में बोली थी। अनफाल बीबी ने इसके मासूम नक्कूश वाले चेहरे को देखा और कुछ देर देखती रही। मेरा मतलब था, अगर कहीं ऐसा हो जिसके ख्यालात बार बार आपके जहन में आ जाते हैं, आप ना भी चाहें तो, लेकिन ख्यालात बुरे ना हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है? और वो इंसान भी अजनबी हो? वह मासूमियत से अनफाल बीबी को देखते इस्तफसार करने लगी। बच्चे, अजनबियों के ख्यालात नहीं आया करते, और जिस तरह आप बता रही हो ऐसे इंसान तो बहुत ख़ास होते। दिल में मखसूस जगह होती है इनकी, जिनके ख्यालात को हम चाहकर भी छटक नहीं सकते। अनफाल बीबी की बात पर वो सर उठाकर इन्हें देखेगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं। पहले उन्होंने हमारी गलती को माफ़ किया, इसके बाद हमें जॉब भी दी और हमें इस रात को बचाया भी। इसलिए बार बार हम सोच रहे हैं, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सर हिलाती खुद को मुतमईन करती अनफाल बीबी के पास ही सो गई थी। अनफाल बीबी ने मुस्कुराते हुए इसका मासूम सा चेहरा देखा, फिर इस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और इसके पास सो गई थी। मेरे मालिक, मेरी बच्ची को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरी बच्ची पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे साथ भी, मेरे बाद भी। तू ही तो वारिस है मेरे मौला इस लावारिस बच्ची का। अनफाल बीबी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर दम किया और इसके सर पर हाथ फेरती सो गई। दरवाजे पर नॉक का सुनकर वो काउच से शर्ट उठाकर पहनता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खुला तो इसकी पेशानी पर चंद शिकनें जाहिर हुई थी। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। चाहत, क्या तरीका है ये? 10 बजने वाले हैं, जाओ यहाँ से। वो अपने बेड पर बैठता देखकर संजीदगी से गोया हुआ उसकी शर्ट से झांकते कसरती बदन को देखकर मायनी खजी से मुस्कुराई थी और उठकर इसकी जानिब बढ़ी थी। आई सेड लीव राइट नाउ। इसका हाथ इससे पहले उस तक पहुंचता वो कुछ ही फासले पर इसका हाथ रोक चुका था। वो मायनी खजी से मुस्कुराती। कम ऑन सी, कब तक छुपाओगे घर वालों से? पता नहीं देती क्यों सब कुछ। वो इसके हाथ को अपने हाथ में लेती धीमी आवाज में बोली थी। सावियान के चेहरे पर स्पाट तासुरात झलक रहे थे। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, फौरन बाहर निकलो। इसका हाथ पकड़ता वो उसे बाहर निकालने ही वाला था जब उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने संजीदगी से आईने में नजर आते शख्स का अक्स देखा था। आने दो जो भी है, चाहत ने इसके गले में बाजू हमायल करते हुए कहा। न जाने क्यों वो मुस्कुराया था, लेकिन ये गलत है चाहत। वो जुमाइनी से बोला था, इसकी कमर में बाजू का घेरा तंग करते हुए चाहत का चेहरा चमक उठा था। फाइनली तुम समझ गए कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना ज़ावियान हैदर रिजवी। वो जारहाना अंदाज में कहते इसके चेहरे को थाम चुकी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था। एक अनजान मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। चाहत, अशफाक साहब गुस्से से धाड़े थे। चाहत फौरन पीछे हुई थी जबकि वो संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डाल चुका था। तुमसे बाद में पूछता हूँ, अभी इसी वक्त हमने कमरे में जाओ। अशफाक साहब चाहत को दुरुस्त नजरों से देखते गौर आए। वो ज़यान का हाथ पकड़ चुकी थी। ज़ावियान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अशफाक साहब को देखा, जिनके हाथ तैश और सब्त के बायस कांप रहे थे। वो चाहत की तरफ बढ़ते सख्ती से इसका हाथ ज़ावियान के हाथ से झटक गया। डैड, मेरी बात सुने। जस्ट शट अप, अपने कमरे में जाओ। बगैर इसकी कोई भी बात सुने उसे बाहर की जानिब धकेलते हुए अशफाक साहब फंकार कर बोले। चाहत डरते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। साविया ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांधकर अशफाक साहब को देखा था, जिनके सबर का पैमाना लबरेज होने को था। करना क्या चाहते हो घटिया इंसान? बहन है वो तुम्हारी और तुम? अशफाक साहब ने उसे काट खाने वाली नजरों से देखकर दांत पीस कर कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा गया था। वो खुद आई थी यहाँ। बेफिक्री से वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते बोला। अशफाक साहब का चेहरा सुर्ख हुआ था। इसके बेफिक्र लहजे पर वो हमेशा यही करता था। अपनी बेटी को कंट्रोल में रखें मिस्टर अशफाक साहब, मैंने इसे नहीं बुलाया था। वो अशफाक साहब के करीब टहल तो एक आईब्रो उठाते हुए जारहाना अंदाज में कहता गोया हुआ। अशफाक साहब ने इसे तीखी नजरों से देखा था। मुट्ठी भेंजे वो जब्त कर गए थे। बहन तो नहीं है वो मेरी अशफाक साहब, क्योंकि वो आपकी बेटी। मेरी बहन कैसे हो सकती है फिर? वो मोहल्ले के लहजे में कहते हुए अशफाक साहब के इर्द गिर्द ऐसे टहल रहा था जैसे एक बाज अपने शिकार पर झपटने से पहले उसे हर जाविये से देखता है।
आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे जावियान? अशफाक साहब ने उसे देखते हुए कहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया था। मेरे पास तो सब कुछ पहले से ही है मिस्टर अशफाक अहमद। आप बताएं, क्या चाहिए आपको? वो इनके रूबरू आता हुआ एक तायराना मुस्कुराहट के साथ बोला। अशफाक साहब की बर्दाश्त की हद थी। वो लब भेजते हुए वहां से वॉकआउट कर गए। वो सीने पर हाथ बांधता इसकी पुश्त को देखकर मुस्कुराया। हाँ, ये कहाँ गया वो पेपर? यहाँ पर ही तो पड़े हैं सारे पेपर्स। फिर मेरा पेपर कहाँ मर गया? वो घबराई हुई दरवाजे को देखती दोबारा पेपर्स टटोलने में महव हुई थी। प्रोफेसर आते ही होंगे। क्या करूं, कहाँ गया मेरा पेपर? वो कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखती मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहती दोबारा अवराक को देखने में मसरूफ हुई। जब ऑफिस का दरवाज़ा खुला था, वो बेजान होती फ़ौरन सीधी होती। इसके परफ्यूम की हल्की महक ने इसकी मौजूदगी की तस्दीक की थी। वो लंबा सांस लेती रिलैक्स होने की कोशिश करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, वो कंपोज करने लहजे में कहती पीछे मुड़ी थी। वो ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने हुए था। हमेशा की तरह बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए हुए था। सफ़ेद दूधिया मजबूत वजाहत से भरपूर कलाई पर ब्लैक स्मार्ट वॉच बंधी हुई थी। वो इसका जायज़ा लेती फ़ौरन नजरें झुका गई थी। वालेकुम सलाम, आप कुछ ढूंढ रही थी मिस आइज़ल अहमद? वो संजीदगी से खुली हुई लॉकर को देखता बोला। वो लब काटती नजरें मजीद झुका गई। नहीं प्रोफेसर। वो नजरें उठाती नफासत से झूठ बोलती सर उठा गई। ऐसे इसका मतलब आप कुछ नहीं ढूंढ रही थी? वह संजीदगी से चलता हुआ इसके सामने रुका था। वो लब काटती सर हिला गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बगैर वजह के ये लॉकर खोली थी? वो एक आईब्रो उठाता हुआ दिलचस्पी से बोला। आइज़ल का दिल धक धक कर रहा था। वो मासूमियत से उसे देखेगी। लब भेंचे। और चूंकि आप कुछ नहीं ढूंढ रही थी तो इसका मतलब ये पेपर भी आपका नहीं होगा। वह इसके सामने लेफ्ट हैंड से पैंट की पॉकेट से एक पेपर निकाल कर टेबल पर रखता हुआ संजीदगी से बोला था। आइज़ल की सांसें अटकी थी और वो झुरझुरी लेते हुए पेपर को देखेगी। इसका हलक यकलक खुश्क हुआ था। दिल की धड़कन सुस्त हुई थी, या यही कहा जाए कि रुक गई थी। उसने खौफजदा नजरों से उसे देखा था, जिसकी शहद रंगी आंखों में बेहद सर्द हो रही थी। ये मेरा पेपर है? वो कामते लहजे में कहती पीछे होती, खौफ और शर्मिंदगी से कब कपाती हुई सर झुका चुकी थी। वह संजीदगी से उसे देखता रह गया। अचानक इसने पेपर उठाया था। आइज़ल ने खौफजदा नजरों से इसे देखा था, जो इस पेपर को मुट्ठी में भेज गया था। सॉरी प्रोफेसर, वो सर उठाती बेजान से लहजे में बोली थी। वो पेपर नीचे फेंकता उसे करख्त नजरों से देखता हुआ इसकी जानिब बढ़ा था। वो खौफ से मुड़ती हुई पीछे दीवार से चिपकी थी। अगर ये मजाक भी किया है आपने मिस आइज़ल, तो इसकी सज़ा आपको हर सूरत मिलेगी। वो दीवार पर अपना मजबूत हाथ रखता शफाफ से लहजे में बोला था। आइज़ल ने थरथराती पलकें उठाकर इसके सपाट चेहरे को देखा। प्रोफेसर, उसे मुसलसल अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो सरगोशी से भी धीमी आवाज़ में बोली थी। Why did you do that? भारी गंभीर सरगोशी थी। वो थरथराती नज़रों से लबवा करती कुछ कहने को तैयार थी, मगर इसकी नज़रों में पेचीदगी देखकर वो कुछ न कह सकी। आई डोंट नो। लब भेजती वो यकलक खुश्क हलक को तर्क करती बेहद मध्यम लहजे में बोली थी। इस वक्त दोनों में कुछ ही इंच का फासला था। आइज़ल इसकी तलस्माती हल्की महक और इसकी सहरंगेज आंखों को इतने करीब से पहली दफ़ा देख रही थी। न जाने क्या था इसकी आंखों में, जो अपने सहर का घेरा इसके गिर्द तंग कर चुकी थी। इसकी खमदार पलकी, इसकी शहद रंग की इन शफाफ आंखों को बेहद खूबसूरती से बयान कर दी थी। Was this another prank? वो इसकी बनफशी आंखों में देखते उससे सार करने लगा। वो खुश्क लम्हों पर जबान फेरती नजरें यकलक झुका चुकी थी। क्या कहती? वो खुद इसका दिल अनजान था इन जज्बातों से, जो खुद गहरी कश्मकश में थी। वो खुद अपने दिल से सवाल करना चाहती थी कि आखिर क्यों किया था इसने ऐसा। Why did you make my sketch, Miss Aizal? इस बार लहजा बेहद गंभीर था। वो नजरें उठाती झूठ बोलने को तैयार थी जब जावियान के फ़ोन ने बजना शुरू किया। वो पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए दीवार से हाथ हटाते हुए पीछे हटा था। सुक्का सांस लेती आइज़ल फ़ौरन वहाँ से निकलने की तैयारी पकड़ने लगी जब इसकी आवाज़ ने इसके उठते कदमों को रोका। आई वॉन्ट माई कॉफ़ी ऑन माई टेबल इन 5 minutes एंड यू विल बी पनिश्ड so that you refrain from doing such pranks again. फ़ोन को कान से लगाए वो बगैर देखे हुए कहते ऑफिस का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया था। लंबा सांस लेती वो भी इसकी कॉफ़ी तैयार करने निकल गई थी। पिछले 15 मिनट से अशफाक साहब सर को हाथों में गिराए बैठे थे। एक लफ्ज़ नहीं कहा था उन्होंने। चाहते नहीं देखती और दोबारा सर झटक जाती। डैड प्लीज़ एक बार फिर मेरी बात सुन ले ठीक से। वी रियली लव ईच अदर। चाहत ने तीसरी बार अपनी कही गई बात को दोहराया। अशफाक साहब ने सर उठाकर उसे सख्त नज़रों से देखा था। किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी तो सुन लो। कोई नज़र नहीं आता तुम्हें इसके सामने।
اشفاق صاحب کرخ لہجے میں کہتے اسے گھور گئے۔ وہ گیم نہیں کھیل رہا ڈیڈ، نہ جانے کیوں لگتا ہے آپ کو وہ واقعی پیار کرتا ہے مجھ سے، اور اس نے باقاعدہ ثبوت دیا اپنی محبت کا۔ مجھے اور اس کی محبت پر مجھے بھروسہ ہے، چاہت نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کسی صورت اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہاں سن سکتی تھی؟ کون سا ثبوت؟ اشفاق صاحب چونکے۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن آپ پلیز اپنی چاہت پر بھروسہ رکھیں، وہ سچ میں بہت پیار کرتا ہے مجھے، چاہت نے اشفاق صاحب کے پاس بیٹھتے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اشفاق صاحب نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا تھا، جو محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی۔ وہ ایک بیسٹ ہے جس کی سیرت سے تم واقف نہیں ہو، میں جانتا ہوں وہ کس قسم کا شخص ہے، اشفاق صاحب نے سر چٹکتے افسردگی سے کہا تھا۔ انف ڈیڈ، آپ کب سے سی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں اور برداشت نہیں کروں گی اس کے بارے میں، اگر آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں تو بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے محبت ہے، and that's it۔ ایک بات جان لیا، میں زی کے بنا نہیں رہ سکتی، دنیا کی نظروں میں وہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے، کچھ تو شرم کی ہوتی، اشفاق صاحب نے غرا کر کہا۔ بس کر دیں ڈیڈ، بہت ہو گیا، کیوں فالتو کے رشتے جوڑ رہے ہیں؟ اس کے ڈیڈ کی بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، اور میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا بار بار مجھے آپ کو بتانا پڑے گا؟ چاہت نے اکتا کر کہا تھا۔ لیکن اب کے حالات تو دیکھو، ایک بار مہنونسا تمہاری ماں ہے، اشفاق صاحب نے اسے بے وجہ سمجھانا چاہا۔ آپ اسے میرا بھائی کہنا بند کر دیں، میرا سر پھٹنے لگتا ہے جب آپ کی ایسی باتیں کرتے ہیں، چاہت نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اشفاق صاحب کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوئی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیا چاہتے ہو آخر تم ساویان حیدر رضوی؟ میری بیٹی میری ہی نہیں سمجھ رہی، آج تمہاری محبت میں اندھی ہو چکی ہے، اشفاق صاحب نے چہرے کو ہاتھوں میں گراتے ہوئے سرداب بھری تھی۔ ویٹنگ روم میں کب سے وہ انٹرویو کے لیے انتظار کر رہی تھی، گھڑی کو بے بسی سے دیکھ کر اس نے سرداب بھری تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی آپ کے سر کو؟ میں یہاں پچھلے 2 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں۔ آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ تنک کر کہتی چیئر سے اٹھتی باہر نکلتی لڑکی کو دیکھ کر بولی، سر امپورٹنٹ میٹنگ میں ہے اور انٹرویو سر خود لیں گے کیونکہ ان کی پرسنل سیکرٹری کی جاب ہے۔ اس لڑکی نے خود سے کافی لحاظ سے کہا تھا، مگر وہ انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، لہٰذا اس کا چھوٹا سا دماغ گرم ہو چکا تھا۔ آفس میں ریوالونگ چیئر پر براجمان شخص کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کیمرے سے سارا منظر پچھلے 2 گھنٹے سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو کون ہوں میں؟ سیرت رضوی ہوں میں، اور انتظار کرنا میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ کے سر انٹرویو لینا ہی نہیں چاہتے یا پھر ان لوگوں کو ذلیل کرنے میں دلی سکون ملتا ہے؟ سیرت نے آنکھیں سکیڑی تھی، اس کی ناک سرخ ہوئی تھی غصے کی وجہ سے۔ وہ لڑکی آفس میں داخل ہو گئی، کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تھی۔ میم آپ کو سر نے بلایا ہے۔ وہ لڑکی باہر آتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سیرت نے تیکھی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر کوٹ درست کرتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ریوالونگ چیئر کا رخ دوسری جانب تھا، وہ انگلیوں میں پلاٹینم پین کو مہارت سے گھما رہا تھا۔ ویلکم مس سیرت رضوی۔ آفس میں بھاری خوبصورت مردانہ گھمبیر آواز گونجی تھی۔ وہ سر جھٹکتی فائل کو ٹیبل پر اس کی جانب بڑھا گئی۔ وہ بھی اسے تپا دینے کے پورے منصوبے بنا چکا تھا، لیکن لہٰذا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ سیرت سے جبڑے بھیج کر اسے دیکھا تھا۔ آئی سی، آپ کو انتظار کرنا پسند نہیں مس سیرت رضوی۔ وہ چیئر کا رخ اس کی جانب کرتا ہوا مسکرایا۔ سیرت ساکن ہوئی تھی، اپنی جگہ پر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ شخص براؤن بالوں کو جیل سے بٹھائے ہوئے بے حد بھوری آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بے حد پرکشش لگا تھا۔ دودھیا رنگت پر اس کی ہلکی بیئرڈ نے اس کی حسین شخصیت کو مزید سرور بخشا تھا۔ سیرت نے سر جھٹکا تھا۔ پلیز ہیو اے سیٹ مس سیرت رضوی۔ وہ سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلچسپی سے گویا ہوا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی کرسی پر بیٹھی تھی، وہ بھم مسکان لبوں پر سجائے اس نے اس کی فائل کا مطالعہ کیا تھا۔ امپریسو مس سیرت رضوی، لیکن آپ کی کوالیفیکیشن کم ہے، وہ اسے تپا دینے کے لیے اس کی جانب فائل اچھالتا کرخ لہجے میں بولا۔ سیرت کا چہرہ سرخ پڑا تھا، وہ اس کی 16 ڈگریوں کو کم کیسے قرار دے سکتا تھا؟ وہ سرخ ہوتی اپنی فائل اٹھاتی کرسی کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہاؤ ڈے یو مسٹر فارس احمد، ورک سمجھ سکیں آپ خود کو؟ وہ تنک کر کہتی اسے بہت پرکشش لگی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا اس کے غصے سے ہوتا چہرہ دیکھ کر۔ یو نو واٹ، مجھے اپنے بھائی کے آفس میں ہی جاب کرنی چاہیے تھی، میرا دماغ خراب تھا جو میں نے یہاں اپلائی کرنے کے بارے میں سوچا، وہ کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فائن، آپ جا سکتی ہیں مس سیرت رضوی، مجھے کوالیفائڈ سٹاف چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملاتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ سیرت کا پارا چڑھا تھا، وہ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھاتی اس پر گرانے کا سوچتے ہوئے گلاس اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کے ارادے بھانپتا ہوا
एक ही जिस्त में चेयर से उठकर इसकी कलाई पकड़ते हुए इसके दूसरे हाथ से पानी का गिलास इसी पर उंडेल चुका था। वह सुर्ख पड़ी थी गम और गुस्से से। नाउ यू कैन सी कि क्वालिफाइड स्टाफ ऐसी हरकतें नहीं करता मिस सीरत रिजवी, इसलिए आप यहाँ जॉब नहीं कर सकती। वह इसके भीगे हुए चेहरे को देखता तासुब से बोला था। वह इसे खा जाने वाली नजरों से देखते अपनी कलाई छुड़ाते अपने इसके ऑफिस से वॉकआउट कर गई थी। वह हल्का सा मुस्कुराया था। वेट मिस आइजल। आइजल जो सरहद से लेक्चर ख़त्म होने के बाद लेक्चर हॉल से निकलने की तगोदो में थी, इसकी आवाज़ सुनती साकत हुई थी। चेहरे पर खौफ के साए थे। वो जो स्टेज से उतर हुआ गहरी सांस भरता संजीदगी के साथ इसकी तरफ बढ़ा था। चूंकि लेक्चर ख़त्म हो चुका था, सब स्टूडेंट्स जा चुके थे, इस वक्त वो दोनों ही इस कुशादा हाल में बिल्कुल अकेले खड़े थे। प्रोफेसर प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट मेक योर स्केच ऑन पर्पस, इट जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर। वो हिम्मत करती हुई मुतज़ब्ज़ब और शर्मिंदा लहजे में बोली थी। इसका जवाब था ही इतना बेतुका कि एक पल को वो अपनी जगह पर साकित हुआ था। हंकारा बनकर वो गला साफ करता सर झटक गया। प्रोफेसर कैन आई गो? वो डुबडुबाई आवाज़ में उसे देखती मासूमियत से बोली, जो लैपटॉप को उठाता हुआ इसकी बात पर रुका था और उसे सरहद से देखा था। इसकी जानिब जहाँ वो बेहद मासूम शक्ल बनाए उंगलियाँ चटका रही थी। यू विल क्लीन द लाइब्रेरी टुडे, पुट ऑल द बुक्स इन देयर प्लेसेस, आफ्टर दैट यू कैन गो होम। संजीदगी से पेपर्स को लैपटॉप पर रखते हुए वो बेपरवाह अंदाज में बोला, जबकि इसकी बात पर आइजल चौंकी थी। मतलब उसे आज लाइब्रेरी की सफाई करनी थी और किताबें भी दुरुस्त जगह पर रखनी थी, जिनमें इसे तकरीबन घंटों लग जाने थे। प्रोफेसर हम कल कर देंगे, अभी जाने दें, वो मासूमियत से बोली थी, जबकि वो पेचीदा नज़रों से उसे देखा जिस पर वो खसियाना हुई। ओके हम कर देंगे प्रोफेसर, एंड सॉरी अगेन, हमने आपका स्केच बनाया। इसकी ज़बान पर दोबारा खुशली हुई थी। वो जाते जुते रुका था। उस ज़बान को लगाम देती मासूमियत से उसे देखे गई थी। वो सर झटकता बाहर निकला था। बगैर कुछ कहे वो मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी की तरफ निकल गई थी, अपनी सज़ा काटने। हाय मुझे ये क्या हो गया, ये तो सरासर बदतमीज़ी है। प्रोफेसर कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं। वो मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी में दाखिल होती हुई खुद बड़बड़ाई थी और किताबों के स्टेक को उठाया था। आई वॉन्ट माई कॉफ़ी ऑन माई टेबल 5 minutes एंड यू विल बी पनिश्ड सो दैट यू refrain from doing such pranks again। इसकी आवाज़ और पुरकशिश शख्सियत वो दोबारा इसके समात व विस्कारा के सामने ऐसे जैसे वो कोई हवा का झोंका था। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आइजल तो पागल हो चुकी है पुत्र। वो सर हिलाती खुद पर तंज करती बुक शेल्फ में नंबर देती बुक्स को रखने में मगन हुई थी। किसी ने बगैर तवज्जो का मरकज़ बने बाहर से लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद किया था। पुत्र तौसीफ तो किथे में? किचन से निकलती आयशा बेगम ने चिंघाड़ कर कहा था। ये 5वीं बार था वो इसे बुला रही थी और इसका नामो निशान तक नहीं था घर में। रेहू कहाँ मर गए हो सारे? आयशा बेगम ने तीखी नज़रों से घर की खाली सेहन को देखते हुए कहा। रीम आंखें मसलते हुए बाहर आई थी। अम्मा क्यों चिल्ला रही हो, सोने दो। तो सिपाही अपने दोस्तों के साथ बाहर गए, कुछ कह रहे थे देर से आएंगे। वो जमाई लेती तासुब से बोली। मनहूस लड़की तो रो क्या नहीं सी ओनू, आयशा बेगम ने तुनक कर कहा, जिस पर रहीम ने मुंह का जाविया बिगाड़ा। अम्मा मेरी बात किधर सुनता है, कौन सी बड़ी क़यामत आ गई भला, बाहर ही तो गया है, आ जाएगा ना, पहले कौन सा घर में रुकता है वो। रहीम ने लापरवाही से कंधे झटके। अरे कर मजली साफत को यूनिवर्सिटी से लेना था, आधा घंटा ऊपर हो गया। हाय अल्लाह हुन की करा मैं, अम्मा को कितनी मिन्नत समाजत से रिश्ते के लिए मनाया था। आयशा बेगम ने चारपाई पर बैठते सदमे से कहा। तो क्या हो गया अम्मा? रहीम ने आंखें फाड़ते हुए कहा। तौसीफ को कहा था कि रोज़ इस मुसीबत को यूनी से ले आया करेगा, वो न जाना किधर टुर गया। आयशा बेगम ने तुनक कर कहा। रहीम ने सर हिलाया था। जब फ़ोन लेकर आ, मिला इसका नंबर, बोल इस आफत मारी को घर लेकर छोड़ दे, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, हमारे सारे ख्वाब टूट जाने। आयशा बेगम ने सर छटकते हुए कहा। रहीम ने तौसीफ का नंबर मिलाया था, जो मुसलसल स्विच ऑफ आ रहा था। रहीम ने फ़ोन स्पीकर पर किया था। खुदा जाने कहाँ रह गया, आयशा बेगम ने फ़ोन को देखते हुए उकता कर कहा था। अनफाल बीबी ने ईशा की तमाम नमाज अदा करके घड़ी पर वक्त देखा था। इन्हें फ़िक्र लाहक हो गई थी, अब तो वो आ जाया करती थी, न जाने क्यों देर हो गई थी। मेरे परवरदिगार मेरी बच्ची को अपने हिस्सों अमान में रख, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा, लेकिन क्या करूँ, इसे इन लोगों के आसरे नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ वो पढ़ लिख जाए, किसी की मोहताज ना हो। मेरे मालिक मेरी बच्ची को अपने हिस्सों अमान में रखना। वो आसमान पर टिमटिमाते तारों को देखती हुई दिल ही दिल में दुआ गो रही थी। रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए वो ऑफिस से बाहर निकला था। पेपर चेक करने में वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था और छुट्टी भी हो चुकी थी।
सब घर जा चुके थे। बेसाख कर उसने पॉकेट पर हाथ रखा था क्योंकि इसका फ़ोन मिसिंग था। डैम इट, फ़ोन कहाँ रख दिया मैंने? वो संजीदगी से सोचता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा था क्योंकि लेक्चर से पहले वो लाइब्रेरी में रहा था, इसलिए खदशा लाहक हुआ था कि शायद इसका फ़ोन वहीं रह गया हो। इसके कदम ठहरे थे लाइब्रेरी पर लॉक देखकर। इसने विंडो से अंदर झांका था जहाँ घूप अंधेरा था। वो लॉक को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। कुछ टूटने की आवाज़ पर आइजल जो कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, करंट खाती सीधी हुई थी। विंडो के सामने से शफाफ फर्श पर एक हिरड़ा सा नजर आया था। आह भूत! वो कानों पर हाथ रखती पूरी शिद्दत से चीखी थी, जबकि टेबल से फ़ोन उठाता हुआ हाथ वो साकित हुआ था। ये लड़की अब तक यहाँ है, व्हाट द हेल? वो स्पॉट लहजे में बड़बड़ाते फ़ोन को जेब में रखता इस कोने की तरफ बढ़ा जहाँ से उसकी आवाज़ आई थी। देखो भूत जी, मुझे मत खाना, मुझ मासूम ने कुछ भी नहीं किया। वो तो प्रोफेसर ने यहाँ मुझे बंद कर दिया। मुझे मासूम को लगा था वो मुझसे सिर्फ सफाई कराएंगे, पर उन्होंने मुझ मासूम को बंद कर दिया। हाँ, बहुत साले में वो, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं बहुत मासूम हूँ, कसम से। वो थरथराती हुई खुद से सिमटती बुझी आवाज़ में बोली थी। इसके दिए हुए खताब पर इसने हनूस होंठों पर हसीन मुतबस्सम बिखरा था। पूरे दिन में वो मुस्कुराया था, वो भी इसकी बेतुकी बात पर, मगर निचला होंठ दबाते उसने मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा होने से रोका था। मिस आइजल, इसकी आवाज़ पर उसे हार्ट अटैक आने को हुआ। इसकी पेशानी में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभरी और वो लोग भेजती उठ खड़ी। प्रोफेसर, हमने कुछ नहीं कहा, कसम से। वो घबराती हुई मिनमिनाई थी। इसके कानों में इसके कदमों की भारी आहट पड़ी थी। क्या वो वापस जा रहा था, उसे अंधेरे में छोड़कर? प्रोफेसर, हमें अकेला मत छोड़ें, हमें डर लगता है। वो जल्दी से उठती हुई गड़बड़ाकर बोली थी। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया था। दरवाजे की तरफ भागती हुई उसकी चौड़ी मजबूत पुष्ट से टकराई थी। उसे अपनी नाक को सरद से पकड़ा था जो इसकी मस्कुलर पुष्ट से मानो टूट गई थी। मिस आइजल, आई सी दैट पेशेंस इज नॉट योर थिंग, इजंट इट? वो संजीदगी से लाइट का स्विच ऑन करते हुए इसकी चारी मुड़ता गोया हुआ। वो शर्मिंदगी से पीछे होती सर झुका गई थी, मगर उसे बाहर जाते देख वो तेज़ी से इसके पीछे भागी थी। वो यूनिवर्सिटी के बंद गेट के सामने रुका। उसने एक कायराना नज़रों से दीवार को देखा और फिर अपने पीछे खड़ी आइजल को, जो इसके देखने पर दीवार को देखने लगी थी। उसने संजीदगी से गेट पर हाथ मारा था, मगर गार्ड शायद अपने चैम्बर में सो चुका था लॉक करने के बाद। मिस आइजल, कैन यू जंप ओवर द वॉल? वो दिलचस्पी से दीवार को देखते हुए बोला था। आइजल के जॉ ड्रॉप हुए थे। ताज्जुब से उसकी आंखें फैली थी। वो बाजू के कफ मोड़ते हुए दीवार की तरफ बढ़ा था। एक जस्ट में वो स्टैंड की दीवार पर था। प्रोफेसर, मैं क्या करूँगी? वो हैरत से उसे देखते हुए बोली, जो दीवार पर खड़ा उसे देखता मुबहिम सा मुस्कुराया था। You will do exactly I did, or you can spend the whole night here shivering in the cold. वो तन से कहता हुआ हाथों को साफ करता दीवार की दूसरी जानब छलांग लगाकर उतरा था। प्लीज़ प्रोफेसर, हमें बाहर निकालें, वो दीवार से लगती मासूमियत से बोली थी। मिस आइजल, आपको बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा, और मैं यहाँ ज़्यादा देर आपका वेट नहीं करने वाला। इसके मकरूर अंदाज पर वो कड़वे घूंट भरती तेज़ धड़कते दिल के साथ फ्लावर स्टैंड पर रखती चढ़ती दीवार पर हाथ रखे। दूसरी जानब से इसका हाथ देखकर वो मुस्कुराहट जब्त कर गया था। कम डाउन मिस आइजल, वो इसे दीवार पर खौफजदा देखकर स्पाट लहजे में बोला था। वो उस खौफजदा नज़रों से उसे देखती सर हिला रही थी। हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे प्रोफेसर, वो मासूमियत से ऊंचाई पर खड़ी ज़मीन को तकती बोली थी। वो सरस से सर छटक कर इसकी तरफ बढ़ा था। आइजल ने रश्क भरी नज़रों से इसके मजबूत हाथ को देखा था जो उसने इसकी तरफ बढ़ाया था। हम फिर भी गिर जाएंगे प्रोफेसर, वो दीवार पर ही बैठती बोली। साविया ने लंबा सांस हवा के स्पुर्द किया था। आप नहीं गिरेंगी मिस आइजल, आप नहीं आ रही, फाइन, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, हम आते हैं। उसे पलटता देखकर वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठी थी। अल्लाह पाक, कोई हड्डी नहीं टूटनी चाहिए मेरी। वो आंखें बंद करते हुए कूदी थी। इसके मजबूत कसरती बाजू ने उसे सुकून से बड़ी महारत से थामा था। इसके मखसूस परफ्यूम की हल्की महक आज आइजल को पहले से कई गुना शिद्दत से महसूस हुई थी। वो सख्ती से भींची आंखों को खोल गई। इसकी पुरकशिश शहद आंखें चांद की हल्की रोशनी में चमक रही थी। एक सेकंड के लिए नज़रों का ज़बरदस्त तकरार हुआ था। वो आहिस्तगी से उसे नीचे उतार चुका था जब इसके पैरों ने नफासत से ज़मीन को छुआ था। वो शुक्र का सांस लेते हुए इसे देखती लगी जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। प्रोफेसर, हमें घर छोड़ देंगे प्लीज़, वो मासूमियत से बोली थी। गाड़ी का लॉक खोलता वो रुका था। I thought that having you as my assistant would reduce my problems, but I am sorry to say that it has been completely reversed. उसे संजीदगी से कहता हुआ ताना देने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठा वो लब भेजती अपनी बेइज्जती पर बैक सीट पर बैठी थी, मगर न जाने कि उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह संजीदगी से ड्राइव कर रहा था जब गियर शिफ्ट के पास बड़े फ्रेम में इसका फ़ोन बजा था।
आइज़ल ने चमकती स्क्रीन पर चमकता नाम चाहत देखा था। वो आमसी नज़रों से उसे देखेगी जो फ़ोन को स्विच ऑफ कर चुका था। प्रोफेसर, आपसे एक बात पूछे हम, अगर आपको बुरा ना लगे? वो कुछ देर खामोशी के बाद बोली थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो संजीदगी से बस ड्राइविंग कर रहा था। वो खामोश हो गई थी। गाड़ी को इसके घर से कुछ दूर रखा था। वो गाड़ी से उतरती हुई उसे शुक्रिया कहने के लिए मुड़ी थी जब वो स्पार्ट से अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकाल चुका था। आइज़ल ने लब भेज कर उसे देखा। कुछ ही मिनटों में इसका मूड किस तरह बदला था। वो इसकी गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक गाड़ी आंखों से ओझल ना हुई। वो लब भेज कर दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे चुकी थी, बगैर ये देखे कि किसी की गहरी नज़र थी इस पर। अनफाल बीबी ने एक मिनट में दरवाज़ा खोला था। इसे सीने से लगाते वो रोने लगी थी। नानो, वो लब गड़वा करती हमदर्दी से गले लगा गई। आप ठीक हो ना बच्चे? इतनी देर कहाँ हो गई थी? खुदा तेरा लाख शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत है। अनफाल बीबी ने इसकी पेशानी पर बूसा देते हुए तशक्कुर भरे लहजे में कहा था। वो मुस्कुराई थी, इनके हाथ थामते बोली, हम बिल्कुल ठीक है नानो, हम बिल्कुल सही सलामत है। वो बस काम था थोड़ा सा, इसलिए देर हो गई। बेटा तो सीफ के साथ आई हो? अनफाल बीबी ने दरवाजे से झांकते हुए फिक्रमंदी से दरियाफ्त करना चाहा, क्योंकि इस वक्त दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। इनके सवाल पर आयशा ने लब भेजे। नहीं नानो, वो हमें सर छोड़ कर गए हैं। वो बहुत अच्छे हैं। जिनके बारे में बताया था, जिन्होंने हमें जॉब दी, वही छोड़ कर गए थे। लेट हो गई थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। आइज़ल ने जल्दी जल्दी कहा था। अनफाल बीबी ने सर को धीरे से हिलाया था, उसे ताज्जुब से देखते हुए जो उसके जिक्र पर खुद ही गड़बड़ा रही थी, साथ ही इनकी आंखों में देखने से परहेज़ कर रही थी। अच्छा नानो, मैं ना कुछ बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। वो जल्दी से बरामदे की जाने बढ़ गई थी। अनफाल बीबी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। चल दूर हट। अम्मा! रहीम दरवाज़ा खोलती हक्का बक्का रह गई। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उसे दरवाजे से दूर धक्का देकर वो बेचारी खौफजदा सी दीवार से चिपकी थी। या मेरे मालिक, ये क्या हाल बना रखा है तुसी? आयशा बेगम जो कब से परेशान बरामदे में यहाँ वहाँ ठहर रही थी, उसे इस हाल में देखकर सदमे से इसकी तरफ मुड़ी जो नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ रुका था। इस घटिया लड़की को नहीं छोड़ूंगा मैं। वो दांत पीसता बोला और पिलर को पकड़ता नीचे बैठ गया। चल उठ इधर से आसिफ। आसिफ साहब ने ये तेरे अब्बा ने देख लिया ना तो जान से मार डालेंगे तुझे भी और मुझे भी। उसे बाजू से पकड़ती आयशा बेगम ने उसे उठाकर कहा। वो सर को गिराता हुआ बाजू झटक कर छुड़ा गया। पूछो इस शातिर लड़की से जाओ कि रात के इस पर अपने कौन से यार के साथ इतनी बड़ी गाड़ी से घर आई है। अल्लाह कसम इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार सामने आ जाए ना, इसका मुंह नोच लूँगा। वो गिरता संभलता मुँह ही मुँह में लिहाज से गिरी गालियाँ देता अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर गया। आयशा बेगम ने निढाल सी नज़र से रहीम को देखा जो हनूज अपनी जगह खड़ी अपनी माँ को देख रही थी। अम्मा, कहीं ये आइज़ल की बात तो नहीं कर रहा था? रहीम ने आयशा बेगम के करीब चारपाई पर बैठते हुए कहा। आयशा बेगम ने एक सरसरी नज़र से रहीम को देखा था। मैं तो रोज़ ही कहती थी ये लड़की ना कोई चांद चढ़ाएगी या मीरजादे को फंसा लिया। सुना था भाई से कि गाड़ी से घर आई है। रहीम ने जलते पे तेल डाला। आयशा बेगम लब भेजती जब्त करती वहाँ से उठ गई थी। कौन होगा वो? रहीम ने पुरसोच अंदाज में खुद कलामी कर फिर कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अनफाल बीबी कुरान मजीद की तलावत करने से फारग होकर आइज़ल के कमरे की जानिब बढ़ गई थी, क्योंकि वो अभी तक इनसे मिलने नहीं आई थी। आज संडे था, लिहाजा यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। अनफाल बीबी ने छत पर हल्की आहट सुनी थी, इसलिए इनका रुख छत की जानिब था। वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। आइज़ल को देखकर इनके लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके सामने डाल रही थी। परिंदे जिनमें चिड़ियाँ वगैरह शामिल थे, इन रोटी के टुकड़ों से अपना पेट भर रहे थे। अरे नानू, आप, अस्सलाम वालेकुम। आप उठ गई? अनफाल बीबी को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, आपने अभी तक खुद नाश्ता नहीं किया और आप इन परिंदों को पहले खाना खिला रही हो? अनफाल बीबी ने मुस्कुराते हुए इसके करीब रुकते कहा और इन परिंदों की तरफ देखा जो इनसे बिल्कुल खौफ नहीं खा रहे थे। यकीनन वो यहाँ रोज़ आया करते थे, इसीलिए किसी और की मौजूदगी से भी वहाँ से उड़कर नहीं गए थे। अरे नानू, मैं तो रोज़ ये सब करके ही यूनिवर्सिटी जाती हूँ। आज आपने रंगे हाथों पकड़ लिया मुझे। आइज़ल धीमे से मुस्कुराई थी और मज़ीद टुकड़े इन परिंदों की जानिब गिराए थे। कितना साफ दिल है तुम्हारा मेरी बच्ची। अनफाल बीबी ने इसके गंदमी रंगत चेहरे को देखकर शफकत से कहा, जो सर्दी के बाद हल्के हल्के गुलाबी पड़ गए थे। दिल तो साफ़ ही होना चाहिए ना नानो। अगर इंसान का दिल ही साफ़ ना हो तो इंसान नहीं कहलाया जा सकता। वो धीमे लहजे में बोली थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो अनफाल बीबी के साथ नीचे उतर गई थी। सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती वह दरवाज़ा खोल चुकी थी। जहाँ रहीम को देखकर वह ठड़की थी, वहीं रहीम ऐसे अजीब ही नज़रों से सर से पाँव तक घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी, वो अंदर दाखिल होती हुई बोली थी। आइज़ल ने दरवाजे से बाहर देखा था, यकीनन कोई नहीं था।
वालेकुम सलाम। अनफाल बीबी ने उसे तासुब से देखा। दरअसल आज मेरी सालगिरह और अम्मी चाहती थी कि तुम आओ। वो एक कार्ड अपने वॉलेट से निकालती इसकी तरफ बढ़ा गई। आइजल ने कार्ड लेकर इसे देखा। अनफाल बीबी ने पुरसोच नजरों से उसे देखा। अच्छा, मैं चलती हूँ भाई, फूफो वगैरह को कार्ड देने गए हैं, टाइम से आ जाना। वो आइजल के हाथ थामती शीरी लहजे में कहकर वहाँ से चली गई। मुझे तो नहीं जाना नानो जान, आप चलें हमारे साथ, क्योंकि हम अकेले नहीं जाएंगे। वो कार्ड एक तरफ लकड़ी की मेज़ पर रखती चारपाई पर बैठती बोली, बेटा पहले नाश्ता कर लो। अनफाल बीबी ने इसके बाल से हिलाते कहा। वो सर हिलाती इनके साथ नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। सावियान, नाश्ता करके जाना। मेहरुन्निसा बेगम के अल्फाज ने मसरूफियत से लाउंज से निकलते सावियान के कदमों को रोका। वो उस पार से अंदाज में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। सब नाश्ता कर रहे थे। अशफाक साहब शायद पहले ही निकल चुके थे ऑफिस के लिए। वो कुर्सी खींचकर अपनी जगह पर बैठा था। मेहरुन्निसा बेगम ने गहरी नजरों से इसके चेहरे पर छाई सर्द मोहरी के तासुरात देखे थे। चाहत ने भी इसे गौर से देखा था, जो काफ़ी संजीदा लग रहा था। भाई, कल की मीटिंग मैं हैंडल करूं अगर आप कहें तो। सीरत ने मुस्कुराते हुए इसका मूड बूस्ट करने के लिए बात छेड़ी। क्यों नहीं, वो इसे तासुब से देखता बोला, जिस पर मेहरुन्निसा बेगम चौंकी और चाहत भी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सीरत, अभी इन चीज़ों की समझ बूझ कहाँ है तुम्हें। मेहरुन्निसा बेगम ने उसे टोका। सीरत ने मुंह बनाते हुए अपने भाई को देखा। लेकिन सी की बात ठीक है, अभी से स्टार्ट करेगी तो जल्दी हैंडल करना सीख लेगी, चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहरुन्निसा ने सीरत को देखा, जो खुशी से चमकी थी। ओके, मैं मीटिंग के लिए तैयारी करने जा रही हूँ, ताकि कल कोई इशू ना हो। लव यू भाई। वो जल्दी से उठती सावियान को चहकर गले लगाती उसकी पेशानी पर बुस्सा देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सावियान, क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ना, इसने आज तक कोई ऐसा इवेंट अटेंड नहीं किया, कैसे हैंडल करेगी वो? मेहरुन्निसा बेगम ने सर झटकते खफा लहजे में कहा। वो हैंडल कर लेगी। नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ वो उठा था। चाहत ने उसे उठते देखकर फूड प्लेट में रखा, उठकर उसके पीछे चली गई। मेहरुन्निसा बेगम ने सर झटका था। इन्हें कहाँ पसंद था चाहत का यूं हर वक्त जीत को चिपकना। सी, मेरी बात सुनो। गाड़ी को अनलॉक करता वो रुका था। चाहत ने इसका हाथ पकड़ते हुए इसका रुख अपनी जानिब किया था। नाराज हो मुझसे? चाहत ने इसके पुरकशिश आंखों में देखते हुए पूछा। वो एक तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजा गया था। कम ऑन सी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। ऐसे जब तुम नाराज़ होते हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इसके ब्लैक कोट को लाट से पकड़ती हुए इसके सीने से लगती बोली। जावियान ने इसके कंधे को पकड़ते हुए इसे अलग किया था, खुद से, जिस पर इसका दिल किरची किरची हुआ। वो गाड़ी अनलॉक करता ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर सीट पर विराजमान होकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। क्या तुमने मुझे भी वो हकूक दिए जो एक शोहर अपनी बीवी को देता है? इसकी कही गई बात पर वो साकत हुआ था। इसकी आंखों से जैसे चिंगारियां फूटने को थी। एक जस्त में गाड़ी से निकल के इसकी मुलायम कलाई पर अपनी उंगलियां सख्त बेबस की थी। वो दर्द से कराहती बेयकीनी से इसके पथरीले स्पार्क चेहरे को देखने लगी। आज तक उसने इसका ये रूप कहाँ देखा था। इसके मजबूत हाथ ने इसका जबड़ा सख्ती से पकड़ा था। दर्द से इसकी आंखों में आंसू आए थे। अगर आज के बाद इस टॉपिक को तुमने ओपन किया या डिस्कस किया, इस स्वेर तुम्हारी जान देने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, अंडरस्टैंड? इसके चेहरे को एक जस्त में छोड़कर पथरीले लहजे में कहकर वो हवा की तरह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला था। चाहत ने मुठ्ठियां भेजी थी। इसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए थे। आइसल, चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है, रहीम ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। आइसल ने लब भेजकर अनफाल बीबी की जानिब देखा, जो अरूसा बेगम के साथ महवे गुफ्तगू थी। वो सर हिलाती हुई उठकर रहीम के साथ गई थी। क्या दिखाना था? वो उसे छत पर लेकर आई थी, जिस पर आइसल को ताज्जुब हुआ था। इसे रहीम की तरफ मुड़ते हुए पूछा था, जब इसके पीछे तौसीफ को छत पर देखकर वो ठटकी थी। रहीम आइसल को देखती नीचे उतरी थी तो तौसीफ ने तायराना नजरों से उससे देखा था, जो लेमन कलर की सिंपल से ड्रेस में और वाइट कलर के दुपट्टे में काफ़ी मुनफरद लग रही थी। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ता था। वो डरती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी, जब तौसीफ ने इसका हाथ पकड़ते हुए इससे सख्ती से खींचा था। क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़े मेरा। वो झुंझलाती हुई अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती उसे बेतासुर नजरों से देखते बोली। हाथ छोड़ दूं तुम्हारा? ओह अच्छा, मुझसे कोफ्त खा रही है, और रात को अपने अमीर यारों के साथ घूमते हुए ज़रा कोफ्त नहीं हुई। इसकी कलाई पर गिरफ्त सख्ता करता हुआ वो काटार आवाज़ में बोला। आइसल ने इस्तफामिया नजरों से उससे देखा था। क्या सोचती है? मुझे कुछ नहीं पता। वो तो दादी ने चाचू से वादा लिया था कि हर सूरत तेरी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है। इन्हें तो यही नहीं पता था कि महारानी क्या गुल खिला रही है। वो बदलिहाजी से कहता हुआ इसके बालों को मुट्ठी में पकड़ता और आया था। आइजल ने सिसकते हुए इसके हाथ को हटाने की कोशिश की थी, जो इसकी गर्दन दबाने पर तुला हुआ था। इसके नाखून ने इसके हाथ पर स्क्रैच लगाए थे। वो गुस्से से हाथ पीछे खींचता एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ चुका था। वो एक पल को साकित हुई थी। इसकी आंखों में कुछ नहीं था। वो बिल्कुल जज्बात और एहसासात से आ रही हुई थी।
इसने कांपते हुए हाथ को होंठ पर रखा था जहाँ से खून बह रहा था। तो सिर्फ गुस्से से फंकारता हुआ नीचे उतर चुका था। वो अपनी जगह बेजान सी हुई थी। आज तक इसने बहुत कुछ सुना था, बर्दाश्त किया था, मगर किसी ने हाथ नहीं उठाया था आज तक इस पर। वो हाथ की पुर्श से आंसू साफ करते हुए दुपट्टे से होंठ से बहता खून साफ करने लगी थी। रक्षा से उतरते हुए उसने अचानक चादर को अपने चेहरे पर रख दिया था। एक आम सी नजर आसमान को देखा था जो काले बादलों से भरा हुआ था। इन बादलों ने आसमान के साथ साथ यूनिवर्सिटी की कुशादा बिल्डिंग को भी अपनी पनाहों में लिए लिया था। सर्द हवा चल रही थी। आइसल, अपने पीछे हुरम की आवाज़ सुनते खुद का नाम पुकारे जाने पर वो आज रुकी नहीं थी। तेज़ कदमों के साथ वो यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी थी। आइसल रुको। हुरम तेज़ कदमों से उसके पीछे चल रही थी। वो स्टूडेंट्स की क्राउड में कहीं गुम हो गई थी। हाँ, हुरम ने ठहर कर आसपास देखा था। अचानक ही वो नजरों से ओझल हो चुकी थी। मेरे रोकने पर ही क्यों नहीं रुकी ये लड़की? क्या हुआ होगा भला? वो आसपास देखती हुई बड़बड़ाई थी। ऑफिस के सारे काम निपटाकर वो कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। पहला लेक्चर लेने का इसका कोई इरादा नहीं था। लेक्चर्स का टाइम टेबल लग चुका था। इवनिंग क्लासेस का स्केड्यूल 2 दिनों बाद हटा दिया गया था। नए वीक से नया स्केड्यूल लग जाना था। सब रूटीन पर आ चुका था। बैग को टेबल पर रखते हुए इसने बुक निकालकर दोनों हाथों में चेहरे को गिराया था। आंखें अश्क बहाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कितनी मुश्किल से वो जब्त करके बैठी हुई थी। क्या सोचती है? मुझे कुछ नहीं पता। वो तो दादी ने चाचू से वादा लिया था कि हर सूरत तेरी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है। इन्हें तो ये पता ही नहीं कि महारानी क्या गुल खिला रही है। हाथ की पुष्ट को सख्ती से गाल पर रगड़ते हुए इसने आंसुओं की पहली लड़ी को अपने चेहरे से साफ किया था। सब करना अब बेहद मुश्किल हो चुका था। हाथ छोड़ो तुम्हारा। वो अच्छा मुझसे कोफ्त खा रही है और रात को अपने अमीर यारों के साथ घूमते हुए ज़रा कोफ्त नहीं होती। लंबा सांस भर लेते हुए इसने दूसरे हाथ की पुष्ट को गाल पर रगड़ा था। दर्द से भरी सिसकारी इसके लबों से अदा हुई थी। इसने अपने निचले होंठ को छुआ था जिससे खून निकलना जारी हुआ था। अश्कबार आंखों से इसने बैग से टिश्यू निकालकर होंठ से निकलता हुआ खून साफ किया था। रिस्ट वॉच पर टाइम देखकर उसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला था। सामने टेबल पर इसकी काफ़ी मौजूद थी। उसने पूरे ऑफिस को एक संजीदा नज़रों से देखा। किसी को तलाश रहा था। इसके डेस्क की तरफ नजरें पड़ी तो वहाँ इसका सामान मौजूद नहीं था। लेकिन लेक्चर का टाइम हो चुका था, लिहाजा वो बगैर देर किए लेक्चर हॉल की जानिब बढ़ गया था। पूरा लेक्चर हॉल इसकी मौजूदगी भांपता खामोश हुआ था। उसने इस पार्टनर से पूरे हाल को देखा था जहाँ वो सादा सी लड़की जो सबसे मुनफरिद लगा करती थी मौजूद नहीं थी। उसने लेक्चर ज़रूर स्टार्ट किया था मगर आज उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। तीसरी बार जब उसने इसकी खाली चेयर को देखा तो सर झटक चुका था। व्हाट नॉनसेंस सी, क्या हो गया है? वो खुद से ऐसे मुखातिब हुआ था जैसे वो सामने खड़ी हो और उसे डांटना चाहता हूँ। सरदा हवा के सुपुर्द करते हुए उसने लेक्चर की तरफ तवज्जो मरकूज़ की थी। सेवन के लेक्चर छोड़कर उसने बाकी सारे लेक्चर लिए थे। न जाने क्यों दिल इसका सामना नहीं कर पा रहा था। वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्यों इससे छुपती फिर रही थी। कंधे पर बैग दुरुस्त करते हुए फ्री लेक्चर के दौरान यूनिवर्सिटी के पिछले पोर्शन की तरफ बढ़ गई। ये हिस्सा लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे था और अक्सर खामोशी रहता था। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग थी। यूनिवर्सिटी की वो सीमेंट के बेंच पर बैग रखती हुई सूखे से दरख्त की पन्ना में बोसीदा से बेंच पर बैठी थी। इसकी आबदीदा नज़रों ने इस दरख्त की सूखी टहनियों के बेजोड़ नज़रों से देखा था। कभी ये दरख्त भी सरसब्ज़ शादाब हुआ करता होगा और अब क्या हालत हो चुकी थी इस दरख्त की। एक तंजिया मध्यम मुस्कुराहट ने इसके सूखे जख्मी लबों को छुआ था। वो शायद इस दरख्त का मवाजना खुद से कर रही थी। इसे सूखे घास पर गिरे हुए इस दरख्त के सूखे बेजान पत्तों को देखा था जो इससे झड़ गए थे। मौसम भी कितना बेरहम होता है ना, किस तरह फेंक देता है तुम्हें तुम्हारे ठिकाने से उखाड़ कर, बगैर ये परवाह किए कि एक बार अगर शाख से तुम टूट गए तो दर बदर की ठोकरें खाओगे। अपना आप नहीं रहोगे, हवा के रहमो करम पर रहोगे। जहाँ हवा ले जाएगी इसी जानब गामजन होना पड़ेगा। वो इन पत्तों से एक को उठा के हाथ में लेती हुई धीमे लहजे में बोली थी। मेरी ज़िंदगी भी तो तुम्हारे जैसी है दोस्त। देखो, मैं भी मामा पापा से अलग हो गई हूँ। मुझे मेरे ठिकाने से उखाड़ कर फेंक दिया है वक्त ने और अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। हालात के रहमो करम पर हूँ। वो इस पत्ते को छूते हुए सरगोशी करते हुए बोली थी, बगैर ये जाने की कोई गहरी नज़रों से इसे देख और सुन रहा है। वो बस दिल का बोझ हटाना चाहती थी किसी से बात करके। मैं भी मुरझा चुकी हूँ तुम्हारी तरह और मुझे भी तुम्हारी तरह अपना ठिकाना नहीं मालूम। न जाने कहाँ है मेरी मंजिल। मैं भी तुम्हारी तरह दरबदर की ठोकरें खाकर एक दिन टूट कर बिखर जाऊंगी जैसे तुम टूट रहे हो। वो इसे पत्ते के खुश्क हिस्से को देखते हुए बोली थी। मैं भी टूट जाऊंगी तुम्हारी तरह। उसने हल्की सरगोशी की थी। हवा का एक झोंका इसके हाथ से वो खुश्क पत्ता उड़ाकर ले गया था। उसने आंखें मींची थी जब आसमान से बारिश टूट पड़ी थी और वो आंखें खोलती हुई बैग उठाती हुई तेज कदमों से बिल्डिंग की तरफ बढ़ी थी।
बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैग रखते हुए उसने बाहर बरसती बारिश को देखा, जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ भिगो चुकी थी। आई होप कि अब तुम फिर से सरसब्ज हो जाओगे पहले जैसे। वो बारिश और हल्की हवा में भीगते हुए सूखे दरख्त को देखती हल्की सी मुस्कुराती बोली थी, जब उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया था। इसका दिल तेजी से धड़का था, बेहद तेजी से धड़का था। बारिश और मिट्टी की हल्की महक के साथ इसने एक और हल्की महक महसूस की थी, जिसे वो बहुत करीब से जानती थी। सर उठाते हुए उसने उसकी तरफ देखा था, जो संजीदगी से इसके पास कुछ फासले पर सीढ़ियों के आके बैठा था, बगैर अपने ब्रांडेड कपड़ों की परवाह किए। प्रोफेसर आप यहाँ? वो सर झुकाते हुए बोली थी। वो स्पार्ट नज़रों से बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। इसने स्पार्ट से अंदाज में बस इतना ही कहा था। आइजल ने नजरें उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो किसी गैर मुर्रई नुक्ते को देख रही थी। क्या हुआ है मिस आइजल? बेहद नरमी से पूछा गया था। आइजल के दिल ने एक बीट मिस की थी। इस कदर नरम लहजे पर उसे इस कदर बेहद रोना अच्छी तरह से आया था। इस कदर नरम लहजा इसके दिल को यह एहसास दिला गया था कि कोई इसका हमदर्द भी है। कुछ भी नहीं प्रोफेसर, वो नजरें झुकाती आम से लहजे में बोली थी। मिस आइजल का था अपने पत्तों की जुदाई की अजियत को शजर महसूस करता है, मगर कुछ नहीं कर सकता। वो इसके दरख्त को देखते हुए संजीदगी से बोला था। आइजल ने इसकी हसीन नकूश को चेहरे को देखा था, मगर कुछ कह नहीं पाई थी। वो इन गिरे हुए पत्तों से एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। आप जानती हैं वो सबक क्या है मिस आइजल? वो इसकी जानिब देखता हुआ बोला था। क्या तकरार था नजरों का, इसके होंठ पर जख्म और गाल पर सूख निशान। देखकर उसने संजीदगी से इसकी आंखों को देखा था, जो कर्ब से भरी हुई थी। वो नज़रों के इस ताल्लुक को कायम ना रखते हुए नजरें झुका गई थी। यही सबक के वक्त इंसान को अपनों से कैसे जुदा करके दुनिया के रहमो करम पर छोड़ देता है। वो जख्मी लहजे में बोली थी। नहीं, ये सबक है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। वो बाहर बरसती बारिश को देखकर बोला था। आइजल ने लब भींचे थे। मिस आइजल, सूरज को भी डूबना पड़ता है उभरने के लिए। गरूब होने का मतलब सवाल नहीं होता। वो संजीदगी से कहता हुआ उठा था। आइजल ने घड़ी पर टाइम देखा था। छुट्टी का वक्त हो चुका था। प्रोफेसर, वो रुका था, इत्मीनान से इसकी तरफ सरद से मुड़ा था। वो काफ़ी पुरसकून लग रही थी। पहले से इसकी बनफशी आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी जो पहले हुआ करती थी। थैंक यू, मैं हार नहीं मानूंगी इंशाल्लाह, वो बैग कंधे पर रखती हुई बोली थी। उसे तासुब से सर हिलाया था और फिर संजीदगी से आगे बढ़ गया था। आइजल की नजरों ने इसका ताक़ुब किया था। न जाने क्या था इसकी बातों में। वो ना सिर्फ पुरसकून हो गई थी, बल्कि वो खुद भी अपनी नई हिम्मत और हौसले को महसूस कर रही थी। वो खुद को अकेली नहीं कह सकती थी अब। मैं अकेली नहीं हूँ। वह हल्की सी मुस्कुराई थी। उसे देखते हुए जो फ़ोन कान से लगाए मसरूफ सा दूसरी बिल्डिंग में एंटर हुआ था, दिल से बहुत बड़ा बोझ उठ चुका था। वो पुरसकून सी होकर घर के लिए रवाना हुई थी। वो सर पर चादर को ठीक करके यूनी से बाहर निकली थी। कुछ फासले पर खड़े तौसीफ ने उसे झुंझला कर देखा था, जो बगैर किसी की परवाह किए रिक्शे को रोककर बेपरवाह से रिक्शे में बैठी थी। वो झुलसा देने वाली नज़रों से देखता हुआ बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा था, मगर इसकी बाइक के बिल्कुल सामने एक ब्लैक गाड़ी रुकी थी। इसने दांत पर दांत जमाकर इस गाड़ी को देखा था। कोई पूरे 10 मिनट गाड़ी वहाँ खड़ा किए बेपरवाह सा फ़ोन पर बात करता रहा, तो तौसीफ का दिमाग गर्म हो चुका था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। 10 मिनट बाद इस बंदे ने वहाँ से गाड़ी निकाली थी, तो तौसीफ सर को नफरत में झटकता हुआ वहाँ से निकल गया। मुझे हर्ट करने का हक किसी को नहीं, और ना ही हक मैं किसी को दूंगी। सही कहा आपने प्रोफेसर। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए संजीदगी से सोच रही थी और पुख्ता इरादा कर चुकी थी। कुशन मुंह में छुपाए वो न जाने कितने घंटों से रो रही थी। इसकी आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो सर उठाते एक नज़र आने वाले को देखकर दोबारा कुशन में सर छुपा चुकी थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? वो रोते हुए सिसक कर बोली थी। चाहत, फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस, वो स्पार्ट लहजे में बोला था। चाहत ने कुशन से सर उठाकर उसे देखा था, जो उसके पास बैठा था। वो आंखें साफ करते हुए उसे देखे गई। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है ये सब ऐसे ओपन में डिस्कस मत किया करो। तुम जानती हो ना अपने डैड को। वो इसके बाल सहलाता हुआ बोला। चाहत ने उसे सर्द नज़रों से देखा। तुम कब तक छुपाओगे घर वालों से? अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो अब इसी वक्त जाओ और सबके सामने कहो कि तुमने मुझसे निकाह किया है, चोरी छुप कर। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मफलूज लहजे में बोली। आज वो इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। ज़ावियान की निगाहों में सुर्ख डोरे आया हुए थे, जिन्हें भांपती चाहत ने लब भींचे थे। वो दुरुस्त नज़रों से उसे देखते हुए उठा था और दरवाजे को धाड़ से बंद करते हुए बाहर निकला था। चाहत ने खौफ से दोनों हाथों को लबों पर दबाया और जल्दी से उठते हुए उसके पीछे भागी थी। गैर इरादी तौर पर उसे गुस्सा दिला चुकी थी और इसके खश्मो अस्बानियत से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। वो तैश से सुर्ख होता अपनी गाड़ी निकालकर कहीं निकल गया था। वो घबराहट से कांपती हुई अपने
कमरे की तरफ भागी थी और बेड से फ़ोन उठाकर इसका नंबर मिलाया था। फ़ोन पर चमकते इसके नाम को देखकर उसने तमस्कराना नज़रों से ड्राइविंग करते हुए रोड को देखते फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे से? और नौज़ी बहुत गुस्से में है। वह सर को हाथों में गिराती इंतसाबी लहजे में बोली और फिर से मैसेज टाइप करने की सही में मसरूफ़ हुई। आयशा, मेरी बात सुनो, रुको प्लीज़। वो जो तेज़ कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ रही थी तो तौसीफ़ के यूँ रास्ते में रोकने पर उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखती हुई रुकी थी। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तौसीफ़ ने धीमे लहजे में कहा था ताकि कोई आता जाता हुआ सुन लेना। वाकई आपको अफसोस हो रहा है? आयशा ने उसे देखते हुए बेतासर जवाब दिया, जिस पर अफसरदगी का मगोटा चेहरे पर चढ़ा आ चुका था। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, तौसीफ़ ने वालहाना मोहब्बत से कहा था। वो गाल पर हाथ रखता हुआ चौंका था। इसकी छोटी छोटी 5 उंगलियां इसके मुंह पर बराबर छप चुकी थी। आसपास के लोगों ने रुककर इन्हें देखा था। उसे आयशा से ये उम्मीद नहीं थी। वो आंखें फाड़े उसे देखने लगा। मुझे भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बुरा लग रहा है। आयशा ने तंजिया लबो लहजे में कहा तो तौसीफ़ का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आसपास खड़े लोगों ने उसे तंजिया नज़रों से देखा था, जो खुद से इतनी छोटी लड़की से थप्पड़ खाए खड़ा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था सवाए मुठ्ठियाँ भींचने की, क्योंकि लोगों में वो इस पर हाथ नहीं उठा सकता था। तुमसे शादी करेगी मेरी जूती, वो इसे तीखी नज़रों से देखकर एक सख्त अदा से कहती हुई अपने घर की जानिब बढ़ गई थी। तौसीफ़ ने लंबा सांस खारिज करके गुस्सा ज़ाहिर किया था। लोग इस पर हंस रहे थे। वो तैश से सुर्ख होता अपने घर की जानिब निकल पड़ा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल रनिंग मशीन पर दौड़ रहा था। इसका कसरती वजूद पसीने में शराबूर था। शर्टलेस होने के बावजूद इसकी पीठ पर बिना वजह के स्कॉर्पियन का ब्लैक टैटू इसकी कुशादा मजबूत पुष्प पर सहर अंगेज लग रहा था। सर स्पॉट नज़रें किसी गैर मुर्रई नुक्ते पर मौजूद थी। जब इसके फ़ोन ने बजना शुरू किया, वो बेमज़ा होकर सर झटकता टावल से पसीना साफ करता हुआ फ़ोन को कान से लगा चुका था। सर, कल रिजवे इंटरप्राइजेस के साथ मीटिंग फाइनल हो चुकी है। इसके गथास होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखरी, साथ ही बुरी आंखें एक मोहले सी चमक के साथ सड़सड़ा हुई। एक्सीलेंट। कितने बजे का टाइम है? कमरे में इसकी दिलकश मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। सर, लंच टाइम के बाद, वो काल मनकता करता हुआ वेलवेट के वाइट सोफे से अपनी ब्लैक शर्ट उठाते हुए वाटर बॉटल को लबों से लगा चुका था। इसकी भूरी आंखों में अभी वही चमक थी जो आने वाले वक्त में किसी शय के होने का अंदाजा जाहिर कर रही थी। बस मिस सीरत रिजवी, आई थिंक दूसरी मुलाकात का वक्त हो चुका है, मुजाराना लहजे में कहता हुआ होंठों के किनारे से मुस्कुराता बेहद हसीन लगा था। इस मनहूस लड़की ने सबके सामने थप्पड़ मारा मुझे, वो तो मैं बर्दाश्त कर गया, वरना 2 रख के देता उसे मैं। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इस कमबख्त की इतनी हिम्मत होगी अम्मा, मेरे भाई को थप्पड़ मारा उसने? रहीम ने आंखें फाड़ते हुए खामोश बैठी आयशा बेगम को मुखातिब किया। सिर्फ तुम्हारे बोलने पर गया था मैं इससे माफ़ी मांगने अम्मा, मगर इसने मुझे थप्पड़ मारा। तौसीफ़ चौधरी को थप्पड़ मारा इसने। इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दी ना तो तौसीफ़ नाम नहीं मेरा, एक बार मेरे हाथ आ जाए। याद रखेगी हमेशा, तौसीफ़ ने गला फाड़ कर कहा। आयशा बेगम ने इसे तीखी नज़रों से देखा था। बहुत हो गया अम्मा, इज्जत पर बात आ गई है। वो 2 कौड़ी की मामूली लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूँगा? कभी नहीं। शादी तो इसी से होगी अब, और फिर देखता हूँ मैं इस कमज़ाद को। वो उठकर आयशा बेगम को खरी खरी सुनाकर घर से निकल गया था। अम्मा, तुम बस अब शादी की तैयारियां करो, एक बार घर आ जाए इसे तो मैं देख लूँगी। हवाओं में उड़ रही है मनहूस कहीं की। उसे ज़मीन में ना गाड़ फेंका तो फिर कहना क्या समझती है खुद को? पता नहीं ये सब सिर्फ दादी के लाड प्यार की वजह से हुआ है, वरना 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है उसे। रहीम की बात सुनकर आयशा बेगम ने उसे तल्ख नज़रों से देखा था। क्या अम्मा, ठीक है तो कह रही हूँ मैं। रहीम ने सर झटका था। सही कह रही है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा है। तेरी दादी का भी कोई भरोसा नहीं, जैसे ही पता लगेगा तो उसी ने थप्पड़ मारा है इस वक्त को, वो इसी वक्त रिश्ता तोड़ने आ जाएगी। बेचारी आयशा, फूल की कली है ना, आयशा बेगम ने तासुब से कहा था।